Friends, today I am here to discuss the changing world order. हमने अभी रिसेंटली देखा कि रसिया ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से लुहांस्क और डोनेस्क को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया है और ताइवान को लेकर के चाइना की पॉलिसी भी काफ़ी अग्रेसिव है. सो वाई दिस वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग चेंज्ड? टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द हेजमनी. हेजमनी क्या होती है? हेजमनी को समझने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक मार्केट में क्रीम आती है फेयर एंड लवली. तो ये फेयर एंड लवली मार्केट में क्यों आती है, ब्लैक एंड लवली क्यों नहीं आती है? माई क्वेश्चन टू यू इज जस्ट थिंक अबाउट दिस, that why black and lovely didn't came in the market, why fair and lovely came in the market? Because hegemony has been created in our mind that गोरा फेस अच्छा लगता है. ये एक hegemony है and we are trapped in this hegemony to sell the cream, to sell the cosmetic creams. These types of hegemony has been created as a fair face is good, a fair face is lovely. अगर ये हेजमनी स्टार्टिंग में क्रिएट की गई होती दैट ए ब्लैक फेस इज लवली, तो फेयर एंड लवली की जगह ब्लैक एंड लवली आता. दिस इज द हेजमनी. सो माई क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स इज जस्ट थिंक इन योर लाइफ, इन योर डेली लाइफ. अगर आप कोई काम करने जा रहे हो या कुछ पसंद कर रहे हो, देन थिंक अबाउट दैट कि वेदर इट इज़ योर रियल चॉइस, why you like what you like, whether it is your real choice or hegemony. So with this concept, now we will start to understand the changing world order. To understand the changing world order, try to read a book which has been written by the Henry Kissinger, and that book's name is The World Order. And in his book, Mr. Henry Kissinger says that there have never been a truly world order. Truly world order कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया. And he talks about the four vision of the world order. Number one is the Westphalian state-centric world order. Second is the Islamic world order. Third one is the Chinese world order. And fourth is the liberal international economic world order based on the Pax Americana. And we have often seen that Russia and China have talked about the Westphalian state-centric world order. The principle of the Westphalian state-centric world order is that the nation's sovereignty is very, very sacred, non-interference in the domestic affairs. And this Westphalian state-centric order, we have also assumed our Panchsheel is also based on this Westphalian state-centric world order. So, Henry Kissinger suggests that today our world is in chaos, and this chaos is very, very dangerous because earlier we were not interconnected, earlier we were not interdependent, but today we are so much interconnected and today we are so much interdependence on different country, and this interdependence is very, very dangerous. And due to this interdependence, the world order is changing. Henry Kissinger also talks that the world have no any coherent vision. US have their own visions. Chinese vision is different. ISIS and Islamic fundamentalist vision is different. So we are not seeing any coherent world order, and that is why we are seeing the changing world order. To understand the changing world order, we will have to take any reference point that from when this world order started to change, and before that reference point what was the world order, after that reference point what is the world order being changed. So to understand this changing world order, we will take a reference point of the end of the Cold War in 1991. When the Cold War ended in 1991, then USSR broke down in several parts. And at that time, America established their leadership quality in the world. America established their hegemony
in the world. And from 1991 to 2001, before the attack on the World Trade Center by the Al Qaeda, America had established their hegemony all over the world. He was becoming the superpower of the world. But when Al Qaeda attacked on the World Trade Center in 2001, then we see some degradation of the leadership quality or the hegemony of the America in the world. Then after sometimes in 2008, we see a recession, financial recessions in 2008. In that recession, we have seen that a lot of Bank of America was become defaulted. दिवालिया के शिकार हो गए बहुत सारे बैंक अमेरिका के, शायद आपको याद होगा. उसके एक साल बाद, आफ्टर 1 year, मिस्टर बराक ओबामा became the president of the America, and then he tried to manage these situations. जो अमेरिका की लीडरशिप क्वालिटी में डिग्रेडेशन हुई है उसको फिर से स्ट्रेंथन करने की काफ़ी उन्होंने हद तक कोशिश किया था. वो कोशिश कर रहे थे. इसी बीच इन 2013 मिस्टर शी जिनपिंग became the president of China, and he started to raise the concern against the America. He started to saying that American economic model is not good, and in Southeast Asia, चाइना अपने आप को मौजूद बनाने लगा और अमेरिकी हेजमनी को चैलेंज करने लगा. डेट ट्रैप पॉलिसी और कई तरह से बहुत सारी ऐसे चाइना से काम हैं जिसकी वजह से वो अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज करने लगा. And in 2021, recently we have seen that America withdrew their armed forces from Afghanistan and Taliban came in power. तो ये सब घटना को लेकर के भी चाइना को फिर से एक मौका मिल गया कि अमेरिका की इस तरह की पॉलिसी सही नहीं है, इसे वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए. तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि अमेरिकी हेजमनी इज बीइंग डाउन कहीं ना कहीं. आफ्टर बराक ओबामा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका इन 2018, और when Mr. Trump became the president of America, they started to raise a slogan that come and make America great again. It means they realized that American leadership जो है वो डिग्रेड हुई है कहीं ना कहीं. और मैं तो ये मानता हूँ जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ डिसीजन लिए अपने कार्यकाल में, दैट अपने आप को यूनेस्को से बाहर किया, ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी से बाहर किया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर किया. तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी गई डोनाल्ड ट्रंप के रिम में जिससे अमेरिका एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से हटता हुआ दिखा, जो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन हेजमनी थी वो कम होती गई और इधर से चाइना ऊपर उठता गया. चाइना अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज करता गया. इन 2019-20 वी सी अ कोविड-19 पेंडेमिक. तो इस पेंडेमिक में भी हमें एक चांस था ये देखने का कि अमेरिका अपनी लीडरशिप क्वालिटी निभा पा रहा है या नहीं. लेकिन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका स्टार्टेड टू सेइंग दैट दिस इज द चाइनीज वायरस एंड WHO इज सपोर्टिंग द चाइना. और ये कह करके उन्होंने WHO को जो फंड दिया जाता था जिस स्तर पे उसमें कमी ला दी. तो हमने एक और डिग्रेडेशन देखा. पहले ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी से बाहर हुआ अमेरिका, फिर यूनेस्को से बाहर हुआ, फिर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड 2015 से बाहर हुआ, और फिर जब वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने आपको एक दिल खोल करके आगे आने की ज़रूरत थी, वर्ल्ड कम्युनिटी को गले लगाने की ज़रूरत थी कि हम यूनाइट होकर के इस वायरस का मुकाबला करेंगे, हम इससे लड़ेंगे, हम निकलेंगे, हम जीतेंगे, उस समय आपने एक ब्लेम की राजनीति किया दैट दिस इज़ द चाइनीज वायरस. और आपने WHO को जहाँ पर ज़्यादा पैसे दिए जाने की ज़रूरत थी वहाँ पे फंड की कमी कर दी. देन दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट अमेरिकन हेजमनी इज बीइंग डाउन. और इन सब चीज़ों में चाइना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगा. देन वी आर सीइंग दैट अमेरिकी हेजमनी इज बीइंग डाउन, चाइनीज हेजमनी इज बीइंग अप. और हम ये कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई अभी चल रही है ये हेजमनी की लड़ाई है. इधर से रसिया और चाइना अमेरिका के खिलाफ
एकजुट हो रहे हैं, उधर से नाटो इन सब चीज़ों के खिलाफ एकजुट है। एक हेजमनी की लड़ाई शुरू हो गई है। एंड इसी का परिणाम है कि जो यूक्रेन का मैटर हुआ है अभी, यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क और लुहांस्क को रसिया ने इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया है। ये सब एक हेजमनी की लड़ाई के अंतर्गत हो रहा है। आप यूक्रेन के इतिहास को समझिए। अब बात आती है फ्रेंड कि ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी। ये हेजमनी इस्टेब्लिश करने की लड़ाई, हेजमनी को चैलेंज करने की लड़ाई, ये कब तक चलती रहेगी? तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक वर्ल्ड कम्युनिटी के पास एक कोहेरेंट विजन नहीं होगा। जब तक अमेरिका अपना अलग सोचता रहेगा, चाइना अपना अलग सोचता रहेगा, रसिया अपना अलग सोचता रहेगा, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। एक कोहेरेंट विजन रखना पड़ेगा। कोहेरेंट विजन, हमें ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें हमें रोजगार क्रिएट करना है, हमें भूखमरी दूर करनी है, हमें गरीबी दूर करनी है। हमें एक कोहेरेंट विजन पे चलना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा वर्ल्ड कम्युनिटी को, तभी जाकर के इन सब चीज़ों से हम निकल पाएंगे। अब सवाल आता है कि आखिर ये कॉमन विजन, ये कोहेरेंट विजन इस वर्ल्ड कम्युनिटी में क्रिएट कैसे होगा? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसका डिसीजन लीगली बाइंडिंग हो सब पे। अब जैसे रसिया ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके को इंडिपेंडेंट घोषित किया, और जैसे ही इंडिपेंडेंट घोषित किया उसे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करने के बाद रसिया ने अपना सेना जो नए कंट्री बने हैं वहाँ भेज दिया, उनके बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करेगा। और ये सब देखते हुए यूक्रेन ने यूएनएससी के मंच से बोला है कि ये सही नहीं है, इसको ठीक किया जाए। क्या ठीक होगा? यूएनएससी के बारे में कहा जाता है कि यूएनएससी इज ए टूथलेस टाइगर। जो P5 कंट्री है उसमें ऑलरेडी रसिया और चाइना है, और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है P5 में, उसका संविधान तो आपको पता है कैसे काम करती है। तो वहाँ पे ऑलरेडी रसिया एंड चाइना है, वहाँ पे कुछ ही बोलने से क्या फ़ायदा होने वाला है? इस तरह का फोरम से कुछ नहीं होने वाला है। एक ऐसा फोरम क्रिएट करना पड़ेगा जिसका डिसीजन लीगली बाइंडिंग हो, लेकिन उसके लिए बहुत सोच समझ करके, सारे कंट्री को ध्यान में रख करके, एक साथ बैठ करके ये डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके अनुसार नियम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 कंट्री बैठ गई, बड़ी बड़ी कंट्री, और उन्होंने ही डिसीजन बना लिया और उन्होंने ही नियम बना लिए, उन्होंने ही जो तय करना था तय कर लिए, सब पे स्थापित कर दिए, स्टेब्लिश कर दिए। ऐसा नहीं होगा। सारे कंट्री को एक साथ बैठ करके एक मंच बनाना पड़ेगा, सबकी बातें रखी जानी चाहिए वहाँ पे, और तब उसका डिसीजन लीगली बाइंडिंग सब पे किया जाए, एक कॉमन विजन लेकर के, तब कहीं जा करके हम इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे। इन सब के बीच एक सवाल आता है कि आखिर इन सब में हम कहाँ हैं? तो फॉर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू माई डियर फ्रेंड्स कि अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, और उनकी एक बुक आई है, द इंडिया वे, ए स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स टू रीड दिस बुक वंस। जो अनसर्टेन वर्ल्ड है, इसमें कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड परहैप्स आई थिंक दैट दे हैव फ्रेम्ड अ लॉन्ग विजन। एक ड्राफ्ट क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर में, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है लंबे समय तक, फिर जा कर के आगे हम इसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे वे से हम हैंडल कर पाएंगे। तो हमने देखा ये हेजमनी की लड़ाई जो शुरू हुई है, जब तक एक कोहेरेंट विजन नहीं होगा हमारा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हमें एक कोहेरेंट विजन बना करके चलने की ज़रूरत है ताकि इन सब समस्याओं से हम निकल पाएँ। और एक प्यारा सा बच्चा है यहाँ पे जिसके मन में अभी के सिचुएशंस को देख करके कुछ चल रहा है, वो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछना चाहता है। मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। क्वेश्चन क्या है?
क्या ये रशिया आ जाओ पहले रूल इधर आ कर जाओ। पाएगा? रशिया क्या रूल कर पाएगा? पहले पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम गौरव है। गौरव कुमार, हाँ, सिर्फ गौरव। गौरव कुमार। ओके। मैं अंकल तो का दोस्त लगता हूँ। हाँ, ये मेरा दोस्त है। तो आपके मन में क्या सवाल चल रहा है? कि रशिया रूल कर पाएगा? किस पे? जिस जिसके भी लड़ाई चल रही है। यूक्रेन पे? हाँ, मतलब रूल कर पाएगा या अटैक कर पाएगा? क्योंकि नहीं, मैं आप ये जानना चाहते हैं कि क्या रसिया यूक्रेन पे अटैक कर पाएगा? या कि रूल कर पाएगा, मतलब कि इसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर पाएगा, क्योंकि पहले यूक्रेन था, उसका हिस्सा था ना। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इस प्यारे से बच्चे की सवाल आप लोग सुने कि अभी के जो हालात हैं और हमने जो अभी हेजमनी के बारे में बताया, उसको ऐड करके, कनेक्ट करके आप इस बच्चे का जवाब दीजिए कि वेदर रसिया विल अटैक ऑन यूक्रेन और नॉट। तो आप इसके बारे में सोचें कि वेदर रसिया विल अटैक ऑन यूक्रेन और नॉट। इफ रसिया विल अटैक देन वाई ही विल अटैक, इफ नॉट देन वाई नॉट। किसे अपनी हेजमनी एस्टेब्लिश करनी है, किसे हेजमनी को ख़त्म करनी है, क्योंकि ये सारी लड़ाई हेजमनी ख़त्म करने के लिए हो रही है। तो ये लड़ाई होगा या नहीं होगा, आप इस हेजमनी एस्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई ना हो, बिकॉज इस लड़ाई के साइड इफ़ेक्ट हम पर भी पड़ेंगे। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के कीमत प्रति बैरल कुछ डॉलर बढ़े हैं, 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास शायद हो गया है। इस लड़ाई की वजह से ये रेट और भी बढ़ सकते हैं, और जितना ज़्यादा ये रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा महंगाई हमारे यहाँ भी बढ़ेगी। उसके हिसाब से हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक हम पेट्रोलियम के लिए अदर कंट्री पे डिपेंडेंट हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लड़ाई ना हो, बातचीत से इसका समाधान निकल जाए तो ही सारी कंट्री के लिए अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ बढ़ती हुई इन्फ्लेशंस इस लड़ाई की वजह से हमें आगे देखने को मिल सकता है। बाकी जो घटना चल रहा है, आप न्यूज़ के माध्यम से आपको सारा बात पता चल ही रहा होगा। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। यूक्रेन रसिया की अपनी एक हिस्ट्री रही है, दोनों अलग अलग अपने अपने दावे करते हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल ही रहा होगा, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इस वीडियो में आज इतना ही। मेरा मेन मकसद था ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसको बताने का, ये क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। बाकी कहानी तो आप बहुत समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी। थैंक यू सो मच।